السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے کربناک انکشاف کا واقعہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ نسیم، تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو۔ تم اس گھر میں نئی ہو، اس لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن جب تم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گی پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میرے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی اور اس کا موڈ پھر سے خوشگوار ہو جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہونا تقریباً ختم ہو ہی گیا تھا۔ اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا، جو برداشت کا بہت زبردست مادہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہونے پر میں بہت خوش تھا کہ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز دوپہر کے وقت امی جان کمرے میں سو رہی تھی اور نسیم کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے چیخنے چلانے پر امی جان کی آنکھ کھل گئی، مگر اس وقت تک نسیم کا جسم 70% جل چکا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نسیم کو اسپتال پہنچایا گیا۔ موبائل کے ذریعے مجھے اسپتال ہی بلا لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نسیم کی جان بچ جائے، مگر یہ ممکن نہ رہا تھا۔ اس نے اسپتال ہی میں دم توڑ دیا تھا۔ میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی، میری آنکھوں کے سامنے اسپتال میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا۔ میں ابھی نسیم کا غم بھلا نہیں سکا تھا کہ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی ہے۔ خواب میں بھی اکثر انہیں ایک عورت جس کے چہرے پر بال بکھرے ہوتے ہیں وہ انہیں ڈراتی ہے۔ نہ ڈرنے پر وہ زور سے ان کا گلا دبا دیتی ہے۔ ابا جان نے اپنے واقف کار ایک عامل جمشید کو دکھایا اور عامل جمشید نے بتایا کہ ان پر کسی روح کا سایہ ہے جو امی جان کو ہر وقت خوف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ علاج کے ذریعے ہی اس سے روح سے نجات مل سکتی ہے۔ ابھی امی جان کا علاج شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھیں۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ابو اور میں دونوں گھبرا گئے۔ امی، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جواب دینے کے بجائے وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹے، امی کو پانی پلاؤ، ابو نے کہا۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے میں نے جگ سے ایک گلاس پانی بھرا اور امی کی طرف بڑھایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئیں۔ خاصی دیر تک وہ گمسم رہیں، پھر کہیں جا کر وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئیں۔ اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی تڑپتی رہوں، زندہ رہوں لیکن ہر وقت خوف زدہ رہوں، کسی پل مجھے چین نہ آئے، امی جان نے بتایا۔ بیگم، تمہیں اس خبیث روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ عامل جمشید ہمیشہ کے لیے اس روح سے تمہیں چھٹکارا دلا دیں گے، ابو نے کہا۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی تھی، آج اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ وہ میرے خدا، کس قدر خوفناک چہرہ تھا! چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا۔
अम्मी जान ने ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। अब्बा जान, आमिर जमशेद को इस खबीस रूह के धमकी देने के बारे में ज़रूर बताना, मैंने कहा। हाँ, तुम बेफिक्र रहो बेटे, मैं सुबह होते ही सबसे पहले आमिर साहब के पास जाऊंगा। अब्बू ने मुझे यकीन दहानी कराई। मैं मुतमईन होकर अपने कमरे में चला आया। मेरा ये इत्मीनान आर्जी था, क्योंकि अब इस खबीस रूह ने अम्मी को दिन में भी डराना शुरू कर दिया था। वो हकीकत में भी अम्मी जान को नज़र आने लगी थी। इस नई सूरत हाल से अब्बू और मैं दोनों ही फिक्रमंद हो गए थे। आमिर जमशेद से अम्मी जान का इलाज चल रहा था और उन्होंने हमेशा भरपूर यकीन दिलाया था कि अम्मी जान को इस रूह से निजात मिल जाएगी, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से निजात मिलेगी। इस खबीस रूह ने बहुत ज़्यादा अम्मी जान को तंग करना शुरू कर दिया था। अम्मी जान की तबीयत ख़राब होने पर अब्बू का मुझ पर दूसरी शादी करने का दबाव बढ़ गया था। इतवार के दिन अब्बू मेरे कमरे में आए और समझाने की गर्ज से बोले, तुम देख रहे हो कि तुम्हारी वालिदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। ऐसे में किसी का घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा करते हैं कि फूफी निकट को चंद दिन के लिए बुला लेते हैं। मैंने तजवीज़ दी, चंद दिन के बाद क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे। उस घर में एक औरत का मुस्तकिल रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। तुम्हारी शादी करनी ही है, ये मसला हल हो सकता है, अब्बू ने कहा। अब्बू जान, मैं क्या करूं? मेरे जहन से नसीम की यादें चिपक कर रह गई हैं। मैं जितना नसीम को भुलाना चाहता हूँ वो मुझे उतना याद आती है। मैंने कहा, तुम जब तक शादी नहीं कर लोगे यादें भुलाना भी चाहोगे तो भुला ना सकोगे। इसलिए इसका वाहिद हल यही है कि तुम शादी कर लो। मैं इस बारे में सोचूंगा, मैंने जवाब दिया। सोचने का वक्त गुजर गया है, अब तुम्हें अमल करना है। अब्बू ने ये बात इस तरह से कही थी जैसे वो मुझे हुक्म दे रहे हों। मैंने घबरा कर उनकी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका लीं। मेरी नज़रें झुकाने को उन्होंने मेरी रजामंदी समझा और मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कमरे से निकल गए। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि अम्मी की ज़ोरदार चीख सुनाई दी और साथ ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई सहन में गिरा हो। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा। अम्मी जान सीढ़ियों से बुरी तरह लुढ़कती हुई नीचे गिरी थी। उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो रहा था, जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। अब्बू भी उनके पास पहुँच चुके थे। काशिफ बेटे, मुझे नसीम ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया था। अम्मी जान के मुँह से बेख्तियार ये जुमला निकला। क्या? मैं नसीम का नाम पर बुरी तरह चौंका। हाँ बेटे, वो नसीम ही थी। ये कहते हुए अम्मी जान बेहोश हो गई। हम अम्मी जान को अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर्स ने मरहम पट्टी करके बहता खून बंद कर दिया। अम्मी के सर में शदीद चोट आई, इसलिए उनका फौरी तौर पर होश में आना मुमकिन नहीं है। ये भी खदशा था कि होश में आते ही कोमे में ना चली जाएं। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर हम दोनों बाप बेटे फिक्रमंद हो गए थे कि अब क्या होगा। अम्मी जान की इस बात ने भी मुझे उलझन में डाल दिया था कि नसीम ने अम्मी जान को धक्का दिया है। ये कैसे मुमकिन था कि एक शख्स मर चुका हो, फिर वो किसी तरह से एक जिंदा इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात एक मुअम्मा की तरह थी जो अम्मी जान के होश में आने पर ही हल हो सकता था। एक हफ्ता मुसलसल बेहोश रहने के बाद अम्मी होश में आ ही गईं। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। खासी देर मुझे ऐसे घूरती रहीं कि जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हों और पहचान नहीं पा रही हों। मैं भी उनके पास चुपचाप बैठा रहा। फिर उन्होंने खुद ही रोना शुरू कर दिया। अम्मी, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? मैंने पूछा। मुझे माफ़ कर दो काशिफ बेटे, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। क्या बात है अम्मी, मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मैंने पूछा। मैं बहुत गुनहगार हूँ, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली।
अम्मी क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं? आखिर बात क्या है, कुछ मुझे भी तो बताएं। काशिफ बेटे, मुझे नसीम से सख्त नफरत थी। मैंने तुम्हारे सुनहरे मुस्तकबिल का जो ख्वाब देखा था वो नसीम के घर आ जाने से चकनाचूर होकर रह गया था। मैंने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली थी कि तुम्हारे अब्बा जान के इस शादी में मर्जी शामिल थी और मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं मौके की तलाश में थी कि नसीम को तुम्हारी ज़िंदगी से किस तरह दूर कर दूँ। एक दिन मुझे मौका मिल गया। उस दिन नसीम को किचन में खाना पकाते हुए न जाने कैसे चक्कर आ गया और वो चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। नसीम के गिरने की आवाज़ पर मैं लपक कर किचन में गई जहाँ नसीम बेहोश पड़ी थी। मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और इस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और ख़ुद कमरे में आ गई। उसके खूब शोर मचाने पर भी मैं किचन में नहीं गई। किचन में जलते हुए नसीम की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस नतीजे में उसका 70% जिस्म जल गया था। मोहल्ले वाले नसीम की चीखों पुकार सुनकर घर में दाखिल हुए। तब मैं लपक कर सहन में गई और मोहल्ले वालों के सामने ऐसे बन गई कि मैं सो रही थी और नसीम की चीखों पुकार सुनकर अभी बेदार हुई हूँ। मैं नसीम के पास मौजूद नहीं थी, इसलिए मोहल्ले वालों को भी यकीन आ गया कि नसीम अपनी गफलत और लापरवाही से जल गई है। नसीम के इंतकाल हो जाने पर वो मुझे ख्वाब में आकर डराने लगी थी। दिन में चलते फिरते मुझे ऐसा महसूस होता था कि नसीम मेरे आसपास मौजूद है। वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं थी, फिर भी ख्वाब में आकर डराने लगती थी। जब आमिल जमशेद से इलाज की बातें होने लगी तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं अपना इलाज ना करवाऊं वरना मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं नसीम से खौफज़दा थी, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह नसीम से मुझे छुटकारा मिल जाए। वो मरकर भी मुझे अपनी सूरत दिखाती रहती थी और मुझे उसकी सूरत देखना गवारा ना था। आमिर जमशेद से मेरा रूहानी इलाज होने पर नसीम की रूह को शदीद गुस्सा आ गया था। वाक़े वाले दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। कपड़े फैलाते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरी चुटिया को ज़ोर से खींचा हो। मैंने पलट कर देखा। नसीम को वहाँ देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं अभी नीचे भागने का सोच रही थी कि वो गुस्से से मुझे देखते हुए बोली, मैंने तुझे मना किया था कि अपना रूहानी इलाज मत करा, मगर तेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। तुझसे छुटकारा पाने के लिए मैंने तुझे जलाकर मार डाला, मगर तू फिर भी मेरा सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं ज़रूर अपना रूहानी इलाज कराऊंगी ताकि तुझ चुड़ैल का मनहूस चेहरा देखने से निजात मिल जाए। मैंने गुस्से से कहा। न जाने मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी जो इस तरह सख्त लहजे में इससे बात करती थी। मेरी बात पर वो चिराग पा हो गई तो जिंदा रहेगी तब ना इलाज कराएगी, मैं तुझे इस काबिल छोड़ूंगी ही नहीं। ये कहते हुए वो मुझ पर हमलावर हुई। मैं अपना दिफा करते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लपकी तो वो भी मेरे पीछे दौड़ी। मैंने जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा उसने ज़ोर से मुझे धक्का दिया और मैं लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। मेरे सर में शदीद चोट आई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। अम्मी जान का ये इंकशाफ मुझ पर बिजली बनकर गिरा था। मेरी बीवी नसीम की कातिल कोई और नहीं, मेरी अम्मी थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस खूनी इंकशाफ को सुनकर उनके साथ क्या सलूक करूं। मैं उनके बेड से हटकर दूर हो गया। मैंने गुस्से से अपनी उंगलियां भींची हुई थी। गुस्सा इतना शदीद था कि मैं अस्पताल से बाहर निकल गया। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। न जाने मैं कितनी देर यूं ही मुख्तलिफ शाहराहों पर चलता रहा। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी आंखों के आगे नसीम का मासूम चेहरा बार बार आ रहा था। किस कदर इसे जलने पर तकलीफ हुई होगी। काश इस रोज़ मैं घर पर होता, मैं कभी भी नसीम को जलने नहीं देता।
जब मुझे कुछ होश आया तो मैं वापस अस्पताल आ गया। अब्बू एक तरफ उदास खड़े थे। मैं जब उनके पास गया तो वो बड़ी उदासी से बोले, बेटे तुम्हारी अम्मी हमें छोड़कर चली गई। कैसे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। कुछ देर कबल उनकी तबीयत अचानक फिर से ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स ने इन्हें इमरजेंसी रूम में ले गए थे, मगर उनको बचाने में नाकाम रहे और इंतकाल कर गईं। एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो गया है, अब इन्हें घर लेकर जा रहे हैं। तुम हौसला रखो और हिम्मत से काम लो। अम्मी जान के इंतकाल पर मुझे ये दूसरा धचका लगा था। पहले उनके इंकशाफ से लगा था। एम्बुलेंस में अम्मी जान की लाश रख दी गई थी। मैं भी अब्बू के साथ एम्बुलेंस में बैठ गया। अम्मी जान नसीम की कातिल थी और नसीम की रूह ने अपने कत्ल का इंतकाम ले लिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी कहानियाँ आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।